Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is an editorial video for problem C weird sum from the Code Forces round 775 division 2 based on Moscow Open Olympiad. Okay, so let's just read the problem first. Igor has a table of size n cross m with lines numbered 1 to n and columns numbered from 1 to m. Okay, so general 2D matrix. Each cent has a color that can be presented as an integer from 1 to 10 raised 5. ओके, तो 1 to 10 raised 5 में हमारे पास कोई हर सेल में एक एक कलर होगा. Let us denote the cell that lies in the representation of rth rows as rc. We define the Manhattan distance between two cells r1 and c1, r2, c2 as the length of shortest path between them, where each consecutive cells in the path must have common side. So basically Manhattan distance is शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स, जिसमें जो दो शेल्स में तुम ट्रैवल कर रहे हो उसमें कॉमन या तो रो हो या तो कॉलम हो. ओके, यू कांट ट्रैवल इन डायगोनल. ओके, now Igor decided to calculate the sum of Manhattan distance between each pair of cells of the same color. Help him to calculate this sum. Okay, so I guess problem statement is quite clear. What we have a 2D we have a matrix, okay, in which each cell, suppose let's just say in this example we have a matrix of 2 into 3 size. okay, इसमें मेरे पास फर्स्ट रो में 1 2 3 कलर्स हैं एंड इन सेकेंड रो आई हैव 3 2 1. okay, what I have to do simply, suppose I have 2 ones here. okay, suppose for color 1 I have two shells, first is 1 1 and second is 2 3. okay, so if I have to find out Manhattan distance between these two shells, what I can simply do, what is Manhattan distance in a 2D array? Let me tell you. Suppose I have a 2D array, okay, and I have to calculate Manhattan distance between these two shells. That can be either this distance or either this distance. okay, that is 1 2 3 4. okay, so ये होती है Manhattan distance. Since we can't travel in a diagonal because each two shells in which we are traveling must share either a common row or either a common side. That's why हम इस shell से either we can go to this or either we can go to this shell. Fine. तो यहाँ तक प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बहुत क्लियर है. तो बेसिकली अगर मैं 1 और 1 का मैनहट्टन डिस्टेंस निकालूँ तो वो सिंपली कितना हो जाएगा? यू कैन ऑल्सो सी इन द एग्जाम्पल. in the shell 1 1 it will be simply 3 by 1 2 and 3. if you firstly travel down then towards right, or in the same way if you travel towards right to this shell 1 3 and then 2 down. okay, now let's just see for second number 2. suppose we have two 2's in this 2D array and we have to calculate Manhattan distance. It will be simply 1 because we have 2's in shell 1 2 and 2 2. so Manhattan distance between they will be 1. and third collection of same color we have is for color 3 1 3 and 2 1. so Manhattan distance between these two shells will be simply 3. so sum of all these distances will be 3 plus 1 plus 3 equals to 7. I have also explained one example. In the same way, if you see this example, in this, let me just draw it here. I have a 4 cross 4 matrix. Okay, and I have 1 1 2 2 1 1 1 1 2. okay, I have a 4 cross 3 matrix 2 1 1 2, then I have 2 2 1 1 and this is neglect this row. so I have to calculate Manhattan distance between all pairs of same color. okay, so if I calculate Manhattan distance between this, it will be 1 plus Manhattan distance between this shell and this one will be 2. actually you have to come this way and this way. okay, so in this way firstly पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस 1 के साथ सारे जो भी जितने भी 1s हैं उन सब की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, फिर
मैं दूसरा वन उठाऊंगा, फिर मुझे उस वन के साथ सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस इन दिस वे, सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4। लेट्स जस्ट से आई हैव टोटल नंबर ऑफ वंस 4। इसका जो शेल है अगर 1 2 है, इसका सपोज 2 1 है, इसका 3 4 है, इसका 4 4 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, पहले इस वाले वन को चूज़ करो, फिर उसका पेयर इसके साथ एंड इसके साथ बनाओ। मेरे पास 3 मैनहट्टन डिस्टेंसेस आएंगी, 3 डिस्टेंसेस प्लस देन ये वाला वन उठाओ, उसका पेयर इसके साथ बनाओ। ओके, ऐसे सारे पेयर्स बनेंगे और मुझे सारे पेयर्स का मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है। फाइन, तो नाउ व्हाट आई कैन सिंपली डू, अब मुझे यहाँ पे ये देखना है। तो ये देखते हैं हम, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह करने पे आया, ठीक है, तो लेट्स जस्ट से कि मैंने इस वन का कितना पेयर बना सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास 4 वंस हैं, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे पेयर्स बनेंगे। अगर मैं इस तरह निकालने पे आ गया तो 1 2, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसका बनाना शुरू करूँगा, फिर इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, so now I have to go for some better approach. Since constraints for this, let's just see constraints for this problem. You can say that n cross m will be always less than 1 lakh. Okay, so clear है ये। एंड वैल्यूज़ मेरी जो है कलर्स की वो ऑलरेडी मुझे पता थी 10⁵ तक की। तो वी हैव टू गो फॉर सम बेटर अप्रोच। हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हमें ये देखना है। तो अगर मैं क्या करूं, एक सिंपल अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आती है, दैट लेट्स जस्ट कैलकुलेट वैल्यूज फॉर ऑल द पेयर्स इंक्लूडिंग कलर 1 देन कलर 2 देन कलर 3। ओके, एंड इस तरह जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं हम उन सब के लिए वैल्यू आंसर की कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। ओके, तो सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कलर्स कुछ 4 थे, फिर मेरे पास 2 आए, कुछ 3, फिर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स जिसमें 3 था कलर, वो मेरे पास समझ लो 4 थे। ओके, इन सब का कुछ शेल का एक्स आई जे को शेल का वैल्यू होगा। जैसे इसका 1 2, इसका 2 1, इसका 3 2 एंड इसका 4 3। सपोज अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इस वन का बहुत इजी कॉम्प्लेक्सिटी में पहले इसका सम इसका डिफरेंस निकालूं, है ना। मैनहट्टन डिस्टेंस एग्जैक्टली हम देखते हैं पहले निकालते कैसे। सपोज मुझे मैनहट्टन डिस्टेंस निकालनी थी बिटवीन शेल 1 1 एंड 1 3। ओके, 1 1 एंड 1 3। व्हाट आई कैन सिंपली डू, मैं पहले एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, मैं पहले सेम कॉलम तक जाऊँगा जो भी मेरे दूसरे शेल का कॉलम है। सपोज इसका रो क्या था 1 और इसका रो क्या था 2। ओके, तो मुझे 1 से पहले 2 में जाना है, मुझे एक स्टेप डाउनवर्ड लेना पड़ेगा। तो यू कैन सिंपली से 2 - 1। ये कितने स्टेप्स डाउन चलना है पहले, 2 - 1 प्लस फिर मुझे कॉलम सेम करना है, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम में जाना है, तो आई कैन सिंपली से 3 - 1। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 3। तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट मैनहट्टन डिस्टेंस इन दिस वे। सिंपली उसके जो आई और जे कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब्सट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो इस वे में मैनहट्टन डिस्टेंस निकल जाएगी। फर्स्टली कॉलम सेम करो, फिर रो सेम करो, इन दिस वे। ओके, तो अब मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, मुझे इस शेल के लिए अगर इन सारे शेल्स के साथ मैनहट्टन डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे पहले इस 1 को 2 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस 2 को इस 1 के इक्वल करना पड़ेगा। ओके, फिर मुझे इस सेम 1 को 3 के इक्वल भी करना है, मुझे इस सेम 1 को 4 के इक्वल भी करना है। तो अगर मैं एक ईजी वर्ड्स में लिख लूँ तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, इस 1 को पहले 2 के इक्वल बनाना है, फिर 3 के इक्वल बनाना है, फिर 4 के इक्वल बनाना है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वाई कोऑर्डिनेट। ये 2 को पहले किसके इक्वल बनाना है, 1 के, फिर 2 के, फिर 3 के। ओके, और इफ आई से इन सिंपल वर्ड्स आई हैव टू कैलकुलेट 2 - 1 प्लस 3 - 1 प्लस
4 minus 1. Okay, this is for x coordinate, this is for y coordinate. Just फाइन. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, जैसे आई एम सिंप्लीफाइंग द सॉल्यूशन मोर एंड मोर, तो मैं कह सकता हूं कि इफ़ आई हैव टोटल नंबर ऑफ शेल्स जिसके साथ मुझे इस करेंट शेल का पेयरिंग करना है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3. ओके, so what I can simply write here, 2 plus 3 plus 4 minus 3 multiply 1. ठीक है, ब्रूटली सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करते जाना है हमें, और फिर उसके बाद कुछ हमें एक फाइनल अप्रोच तक पहुंचना है, फाइनल और ईजीएस्ट अप्रोच तक. ओके, तो मेरे पास, मैं इसको एक इस तरह लिख सकता हूँ. व्हाट इज दिस? लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दिस. ये जो है मेरा, ये मेरा टोटल सम ऑफ शेल्स बन सकता है. टोटल सम ऑफ शेल्स ऑफ टोटल सम ऑफ आई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द शेल्स 2 3 4. एग्जैक्टली हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम 1 को वहाँ पे, अगर हम टोटल सम की बात कर रहे हैं तो हम इसको पहले 1 को ऐड कर सकते हैं, फिर हम 1 को वहाँ से हटा देंगे. तो मेरे पास एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? जितने भी बचे हुए शेल्स हैं जिसके साथ मेरा करेंट शेल पेयरिंग कर रहा है. ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को. तो आई कैन सिंपली हैव 2 + 3 + 4 इन ओ ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, ये तो मैं ले सकता हूँ, और ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1. मुझे 3 की वैल्यू मिल जाएगी, और मल्टीप्लाई 1 मुझे ऑलरेडी पता है बिकॉज करेंटली मैं इसी शेल में हूँ. तो मैं ये चीज़ तो O ऑफ 1 में निकाल सकता हूँ इफ़ आई ऑलरेडी नो टोटल सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ कॉलम. ओके, इसी तरह मैं y कोऑर्डिनेट के लिए भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है, पहले मुझे 2 को 1 के इक्वल बनाना है, फिर 2 को 2 के, फिर 2 को 3 के. तो व्हाट आई कैन सिंपली से, आई कैन राइट इट एज टोटल सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ कॉलम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स I have -1 multiply current value of y coordinate. Why? I have already told you कि मुझे सबसे पहले 2 को 1 के इक्वल बनाना है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा 2 माइनस प्लस, मैंने इसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया है, 2 - 2 प्लस 2 - 3. अब ऑब्वियसली मैं इसका एब्सोल्यूट लेने वाला हूँ, ठीक, क्योंकि मैं किसी डायरेक्शन में भी चलूँ, अगर मैं 2 से 3 में जा रहा हूँ या 3 से 2 में जा रहा हूँ, ओके, तो मैं लेफ्ट और राइट चल रहा हूँ, लेकिन वो जो काउंट होगा स्टेप वो +1 की तरह ही होगा. दैट्स वाई. ओके, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था? टोटल सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ कॉलम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1 दैट इज 3 मल्टीप्लाई करेंट वैल्यू दैट इज 2. ओके, तो इससे कुछ एक अप्रोच आई होगी. ये जो मैंने इतना बताया है, इससे एक अप्रोच दिमाग में बिल्ड होती है कि अगर मैं किसी एक शेल को करेंट शेल मान लूँ, ठीक है, अगर मैं किसी एक शेल को करेंट शेल मान लूँ, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है मेरा आंसर में, इस शेल को अगर मैं करेंट शेल मान लूँ, उसका जो कंट्रीब्यूशन है मेरे फाइनल आंसर में, वो मैं निकाल सकता हूँ O ऑफ 1 में. कैसे? देन जब मेरे पास टोटल सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ कॉलम हो एंड टोटल सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ कॉलम हो, तो मैं O ऑफ 1 में एक सिंगल शेल का कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ अपने आंसर में. हाउ? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो अब जब मैं सिंगल शेल का कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, इसके इन द सेम वे मैं इस शेल का कंट्रीब्यूशन निकालूंगा, इन द सेम वे इस शेल का, इन द सेम वे इस शेल का. ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस मुझे कितने करने पड़ेंगे? लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दैट. सिंस मैं हर एक शेल का कंट्रीब्यूशन O ऑफ 1 में निकाल रहा हूँ, एंड लेट्स जस्ट से कि मैं अगर n क्रॉस m भी इटरेट करता हूँ एरे में, तो मेरी जो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी चल जाएगी 2D एरे में? n क्रॉस m. एंड वी कैन सिंपली अफोर्ड इट. Why? Because n क्रॉस m is less than always 10⁵. ओके, तो ये एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था. इसमें तुम्हें थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी है. अगर तुम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो कंट्रीब्यूशन है टू द आंसर अलग अलग निकालो, तो यू कैन सिंपली थिंक आउट दैट. तुम्हें ब्रूटली सॉल्यूशन की अप्रोच बिल्ड करनी थी.
So now I'm showing you the code. If you still have any doubt in the approach of the question, you can ask me in comment section. I will explain you in brief again. Okay. So here is the code for the problem. अब एक चीज़ और देखते हैं. मैं कोड थोड़ा सा कोड को एक्सप्लेन करने के पहले एक चीज़ और बता देता हूँ. ठीक है. लेट्स जस्ट से आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट. मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से 1 2 3 4. अब मुझे इस एरे में सबसे पहले इसको कंसीडर करना है करंट, फिर उसका इन सब के साथ निकालना है, फिर इसका इन सब के साथ निकालना है. ठीक है. तो मैं एग्जैक्टली करूँगा क्या, मैं टोटल सम तो निकाल ही लूँगा. ठीक है. सपोज मैं करेंटली जो मेरा करंट शेल है, ये मेरा करंट शेल है. अब मुझे इसका जो डिफरेंस है इसके साथ भी निकालना है और इसके साथ भी निकालना है. तो मैं अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालता तो मैं क्या करता, 2 + 3 + 4 सारा कर लेता. बट अगर मैं यहाँ पे टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स निकालूंगा तो वो आएगा कितना, 1 + 3 + 4 माइनस मैं सिंपली क्या करूँगा 2 + 2 + 2 कर दूंगा. बट दैट इज़ रॉन्ग. वाई? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है ये देखते हैं. यहाँ पे मुझे ऐसा करना है 2 - 1 + 3 - 2 + 4 - 2. ओके. तो यहाँ पे कुछ से ऊपर से अलग दिख रहा है. वाई? क्योंकि जो बड़ा एलिमेंट है उससे हम उसके आगे वाले शेल्स हमेशा छोटे एलिमेंट्स माइनस करेंगे. ठीक है. ऑब्वियसली क्योंकि मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा पॉजिटिव काउंट करने हैं. तो जो भी बड़ी वैल्यू है उससे हमेशा छोटी वैल्यू माइनस करेंगे. और जो ये अंडरस्टूड है. ओके. तो व्हाट आई कैन सिंपली डू, आई कैन सॉर्ट दीज नंबर्स इन द स्टार्टिंग. मैं इसको अगर सॉर्ट कर लूँगा कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. उसके बाद मैं पेयरिंग करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वैल्यू के लिए अगर डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तब ये वाली चीज़ निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके आगे वाले शेल्स के साथ तो मुझे जितना भी है सब इस तरह करना पड़ेगा. 2 - 1 + 2 - सम शेल जो भी आगे वैल्यू है. ठीक है. तो मैं जितने भी नंबर्स उसके पहले हैं उसके लिए क्या कर दूंगा, 2 × टोटल नंबर्स इन फ्रंट ऑफ दिस 2. सपोज अभी तो एक ही है मेरे पास, माइनस सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स और सम ऑफ प्रीफिक्स एरे. यू कैन सिंपली राइट इट एज प्रीफिक्स. ओके. और उसके आगे वाले शेल्स के लिए क्या करूँगा, इसका रिवर्स. ठीक है. यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ सफिक्स एरे 2 के आगे वाली माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके आगे जो कि 2 हैं मल्टीप्लाई 2 जो करेंट वैल्यू है. ओके. तो ये अंडरस्टूड था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था बस. जैसे मैंने वैल्यू ले ली एन की, फिर उसके बाद इनपुट ले लिया वेक्टर का, फिर मैंने एक वैल्यू बना ली. ठीक है. उसमें x के करेस्पॉन्डिंग मैंने जितने भी x की कोऑर्डिनेट्स थे, सपोज कलर 1 के कोऑर्डिनेट्स x वाले मैंने सारे पुश करा दिए, फिर y कोऑर्डिनेट्स सारे मैंने एक मैप में पुश करा दिए. ठीक है. और मैंने मैप कैसे बनाया है, इंट के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो वेक्टर है. वेक्टर में मैं सारे x कोऑर्डिनेट्स डालूंगा कलर 1 के, और कलर 1 के y कोऑर्डिनेट्स मैं y मैप में डालूंगा. फिर मैंने एक आंसर वैल्यू इनिशियलाइज कर ली. ओके. फिर मैं अब x कोऑर्डिनेट प्रोसेसिंग की बात करता हूँ. ठीक है. मैंने क्या किया, सिंपली n में टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो मेरे पास हैं वो ले लिया, 2 वैल्यूज़ बनाई, इनिशलाइज की 0 से, एक सफिक्स सम एक प्रीफिक्स सम, इनिशियली पूरा वेक्टर सॉर्ट कर दिया. अब 0 से स्टार्टिंग की. जब मैं पी आई एलिमेंट को करेंट एलिमेंट ले रहा हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसके आगे हैं, ठीक है, उन सब का सम जो कि प्रीफिक्स में आएगा, सारे छोटे होंगे ऑब्वियसली, उनको मैं क्या कर दूंगा, पी आई मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से माइनस, और सफिक्स के लिए सिंपली रिवर्स कर दूंगा, सफिक्स माइनस पी आई इंटू टोटल नंबर ऑफ सम्स, और प्रीफिक्स और सफिक्स हर राउंड में अपडेट करता जाऊँ. सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट. ओके. तो मैं सिंपली यही कोड कॉपी कर देना है बस. अब जो मैप तुम्हारा है वो वाई हो जाएगा. ठीक है. एंड इन द एंड यू कैन print the final contribution of all the shells or all the colors in the answer.
So thank you guys for watching this video. You can get the code link in description. If you have any doubt, you can ask me in comment section. I will explain in brief again. Thank you guys for watching.